Good morning, children. Now I am going to start the second chapter of English literature, His First Flight. The name of this chapter is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This is written by Nelson Rolihlahla Mandela. In this chapter, we will study about Nelson Mandela, who was a very famous personality in South Africa. In South Africa, he was very famous. South Africa, we know that South Africa is the country in African continent. It is in Arctic Circle. This book, Long Walk to Freedom, is an autobiography. It is an autobiography of Nelson Mandela. What is an autobiography? Autobiography is the life history of a man. It is the life history of a man written by himself. This is called an autobiography. So, Long Walk to Freedom, it is an autobiography of Nelson Mandela. Nelson Mandela was addressed as Madiba in Xhosa clan name. In South Africa, there was a Xhosa clan. In Xhosa clan, the people called Nelson Mandela Madiba. Nelson Mandela belongs to a royal family in South Africa, and the name of this royal family was Thembu. Thembu was a royal family in which Nelson Mandela lived. Nelson Mandela was the first president of South Africa. He became the first president of South Africa in 1994. But he fought very bravely against a system in South Africa. The name of this system was apartheid. Apartheid was a racial discrimination between black versus व्हाइट. तो अपार्थाइड जो था यह एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन ब्लैक वर्सेस व्हाइट. इन साउथ अफ्रीका ब्लैक पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड. दे हैड नॉट एनी राइट in any field, like they were not allowed to take the political meeting in South Africa. They were not allowed to study in schools and colleges in South Africa. Even they were not allowed to enter into the schools and churches in South Africa. So in this way, black people were totally discriminated rather than the white. All the freedom were given to only white settlers. When Nelson Mandela saw this, he felt very sad and he fought for this system. The name of this system was apartheid, and for this he remained in prison up to the 27 years. But at last he released and became the first president of South Africa. In South Africa, Nelson Mandela is known as the father of the nation. The people loved him so much that they called him the father of the nation. As in India, we know that the father of the nation is Mahatma Gandhi, because Mahatma Gandhi also fought very bravely. He fought very bravely from the Britishers to make India free. That's why we Indian came to be known as Mahatma Gandhi, the father of the nation. So in this chapter, Long Walk to Freedom, we will study about the date 10th May 1994, when
Nelson Mandela became the first president of South Africa, and he has to be given this title of the president in this inauguration. Thank you. So, good morning children. Let's start the chapter. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. So 10th May, as we know that it was the 10th May 1994. So Nelson Mandela says that the dawn means morning. It was very clear, यानी 10th May की जो morning थी वह बहुत ही bright और clear थी. And for the past few days, पिछले कुछ दिनों से Nelson Mandela was pleasantly besieged. Besieged means surrounded by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो इस inauguration में वर्ल्ड के कई dignitaries और famous leaders आए हुए थे नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट पे करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए. किससे पहले? जब वे प्रेसिडेंट के लिए ओथ लेने वाले हैं उससे पहले. The inauguration would be largest gathering ever of international leader on South African soil. जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिग्निटरीज आए हैं या लीडर्स आए हैं वे उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए आए हुए हैं या उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में यह फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी. लोगों ने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव चूज किया था. साथ ही साथ जब अपार्थाइड अबॉलिश हुआ था तो दुनिया के कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका का साथ दिया था. लेकिन अपार्थाइड के दौरान ऐसे कितने कंट्री थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका का साथ छोड़ दिया था. तो ये सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, डिग्निटरीज हैं, ये जो लोग हैं वे साउथ अफ्रीका के साथ अपनी रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं. दैट्स वाई दे केम देयर, और वे नेल्सन मंडेला को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री नेल्सन मंडेला ने चेंज कर दी थी. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल. तो साउथ अफ्रीकन सॉइल में साउथ अफ्रीका की धरती पर यह अब तक का सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग जो था या लार्जेस्ट क्राउड से भरा हुआ इनॉग्रेशन था जिसमें इंटरनेशनल लीडर्स अपीयर थे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. तो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में जो कि सैंडस्टोन का था, एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर का मतलब एन ओपन एयर, एम्फीथिएटर मीन्स एन ओपन एयर. तो वहां पे ये सेरेमनीज टुक प्लेस हो रही थी, हेल्ड की गई थी. For decades, this had been the seat of white supremacy. Decade means 10 years होता है, लेकिन decades मतलब कई 10 years को मिला करके, यानी for a long period of time, लंबे समय से ये जो सीट्स था प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग का, वहां पे व्हाइट सुप्रीमेसी का रूल था, यानी वहां पे व्हाइट सुप्रीमेसी के लोग बैठते थे. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. लेकिन अब यहाँ डिफरेंट कलर, यहाँ पे रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर कहा गया. रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर का मतलब डिफरेंट कलर के लोग, यानी व्हाइट, ब्लैक जितने भी थे, रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया कई प्रकार के भिन्न भिन्न कलर के लोग यहाँ पे आए हुए थे. और यह साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो था यहाँ पे बन रहा था, यानी जहाँ पे किसी भी नॉन रेशियल का मतलब किसी भी जाति के लोग को गवर्नमेंट फॉर्म करने की अलाउंस हो गई थी. ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी ऑन द पोडियम. सो ऑटम का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, पतझड़ का महीना होता है. तो साउथ अफ्रीका में जो ऑटम होता है वो हमारे यहाँ के ऑटम से अपोजिट होता है. क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वह सदर्न हेमिस्फीयर में लाइज है, जबकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज है. तो यहाँ पे समर से पहले ऑटम आता है, और जब यहाँ समर होता है तो साउथ अफ्रीका में विंटर होता है, तो विंटर से पहले वहां पे ऑटम आता है. क्योंकि 10th
मई का समय है तो ये ऑटम डे वहां का पड़ता है। सो आई ऑटम टाइम पड़ता है। सो आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। तो मैं अपनी यानी कि नेल्सन मंडेला अपनी पुत्री जिनानी के साथ वहां पर थे। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन इन एन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम मीन्स स्टेज, स्टेज पे मिस्टर डी क्लर्क जो थे वे सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ ले रहे थे। देन थाबो मैकबी वॉज सोन इन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और थाबो मैकबी जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की ओथ ले रहे थे। When it was my turn, और जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey and uphold the constitutions। तो जब उनका टर्न आया तो उन्होंने ओथ लिया कि वे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डिवोट हिमसेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और उन्होंने कहा कि वे साउथ अफ्रीका में जो भी लोग हैं उनके प्रति डिवोट होंगे, समर्पित होंगे। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड ही सेड, यानी जितने भी गेस्ट वहां पे असेंबल्ड हुए थे, गैदर्ड हुए थे, उनको देखते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। कन्फर मीन्स गिव, यानी साउथ अफ्रीका में जो न्यू लिबर्टी मिली थी, लोगों को नेल्सन मंडेला चाहेंगे कि वो लिबर्टी ऐसे ही बनी रहे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो भी साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर झेला, इट मीन्स रेसियल डिस्क्रिमिनेशन को लंबे समय से झेला, नाउ इट इज लास्टेड, अब वो खत्म हो चुका है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और एक ऐसे सोसाइटी को उन्होंने फॉर्म किया है जिसपे जितने भी साउथ अफ्रीकन के लोग हैं वो क्या कर सके, प्राउड कर सके। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host the nation of the world on our own soil. Outlaws means because of the policy of an apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. जब साउथ अफ्रीका में अपार्थेड था तो उसमें कई ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशंस रखना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हैव टुडे बी गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज इतनी प्रिविलेज मिली है टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि कई नेशंस के जो लोग हैं वे नेल्सन मंडेला को होस्ट करने के लिए वहां पर आए हुए हैं। We thank all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our own country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। यानी जितने भी लोग, लीडर्स वहाँ पे आए हुए हैं उनको नेल्सन मंडेला थैंक कह रहे हैं। यानी ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट, डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनेशनल गेस्ट जितने भी वहाँ पे अपीयर्ड है उन सबको वे थैंक कह रहे हैं जो कि वहां पे आए हुए, और ये भी कह रहे हैं, कॉमन पीपल का मानना है यहाँ पे कि इससे जस्टिस, पीस और डिग्निटी को फ्रीडम मिली हुई है। यानी जो भी जस्टिस हुआ है, यानी जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं उनका कहना है कि अबॉलिस्ट की यहाँ पे अपार्थेड के अबॉलिस्ट से ह्यूमन की विक्ट्री हुई है, जस्टिस की विक्ट्री हुई है, पीस की विक्ट्री हुई है और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री हुई है। अर्थात अपार्थेड के अबॉलिशन से सारी जो कंट्री है वो वन बाय अनदर। उनका मानना है कि वी हैव एट लीस्ट अचीव और पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं अंत में उन्होंने अपने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम को क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। इसका मतलब ने साउथ अफ्रीका जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो चुका है। वी प्लेस आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिप्राइवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, यानी जहां पे किसी को राइट न मिलता हो, किसी भी प्रकार का अधिकार न, उसको डिप्राइवेशन कहते हैं। तो उनका
अब ये प्लेस था, शपथ था कि अब साउथ अफ्रीका में कोई भी पॉवर्टी में नहीं रहेगा, सबको राइट मिलेगा, सबके सफरिंग कष्ट खत्म हो जाएंगे, किसी प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, साउथ अफ्रीका के सारे लोग अब हैप्पी रहेंगे। नेवर नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वंस बाय अनदर, यानी ये ब्यूटीफुल लैंड जो है अब कभी भी किसी प्रकार का ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन का मतलब शिकार, यानी इस प्रकार के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं बनेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का कहना है कि जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने साउथ अफ्रीका में खत्म कर दिया, यानी अपार्थाइड सिस्टम को खत्म कर दिया है, अब कभी ऐसा दोबारा नहीं होगा। सो लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। उन्होंने अफ्रीकन कंट्री के लिए गॉड ब्लेस कहा, यानी वहां के लोगों के लिए कहा कि अब ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular area of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. And after few minutes, when they all who gathered there, when they lifted their eyes in the sky, they saw that साउथ अफ्रीकन जेट्स, उन्होंने देखा कि जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और ट्रूप्स थे, दे कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। यहां पे कह रहा है कि ऑल वर हैप्पी, वहां पे जितने लोग थे वे खुश थे। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्ले था इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, नज़ारा बहुत ही सुंदर था। एंड जो भी साउथ अफ्रीका की मिलिट्री थी, साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट को एक्नॉलेज कर रही थी और वो सलाम कर रही थी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। क्यों? क्योंकि जो न्यू गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में फॉर्म हुआ था वो फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुआ था। तो जितनी भी वहां की आर्मी थी, ट्रूप्स थी, वे नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने पे वो उनको सलाम कर रही थी। Only moments before, the highest general of South African Defence Force and police, their chest bed-caked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moments before मतलब after some moments, the highest general of South Africa, अफ्रीका के जितने भी highest general थे, डिफेंस फोर्स और पुलिस थी, जिनके चेस्ट पर रिबन्स या तो मेडल्स लगे हुए थे, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, वे सब नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे, सलाम कर रहे थे और प्लेस देयर लॉयल्टी, और वे प्लेस मीन्स ओथ कर रहे थे कि वो पूरी वफादारी से अपने कार्य को या अपने ड्यूटी को पूरा करेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। हियर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि बट फ्यू ईयर्स बिफोर, लेकिन कुछ वर्ष पहले वे उन्हें अरेस्ट कर सकते थे जब वे अपार्थाइड के अगेंस्ट विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वे उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे बल्कि वे उनका सलाम कर रहे थे। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में सेवरन ऑफ इम्पाला, सेवरन जो है इट इज ए काइंड ऑफ जिग जैग पैटर्न, यानी इम्पाला के जो जेट्स थे वे जिग जैग पैटर्न में स्काई में फ्लाई कर रहे थे और वे साउथ अफ्रीकन फ्लैग के जो कलर होते हैं उन कलर के जो उनमें जो कलर्स होते हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, वैसे स्मोक को क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे आकाश में। यानी इस प्रकार से वे नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बनने पे सलामी दे रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Khosi Cyclads E Africa and black singing Daesh Team। वह डे जो था मेरे लिए बहुत ही सिम्बलाइज था, इसलिए सिम्बलाइज था क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका के टू नेशनल एंथम क्या किए जा रहे थे, बजाए जा रहे थे। जो भी वाइट सेटलर्स थे वो खोसी सिकलेट्स ई अफ्रीका जो उनका नेशनल सॉन्ग था वो गा रहे थे,
और जो वहाँ पे ब्लैक पीपल थे वो डाई स्टीन नेशनल एंथम है वो गा रहे थे। यानी वे सभी एक दूसरे के नेशनल एंथम को साथ साथ गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये जो नेशनल एंथम था ये रिपब्लिक साउथ अफ्रीका के पहले का नेशनल एंथम था। Although that day neither groups knew the lyrics of the anthem, they once despised means had a very low opinion of, they would soon know the word by heart। यानी उस दिन दोनों ग्रुप एक दूसरे के नेशनल एंथम को सिंग कर रहे थे, दो दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट नेशनल एंथम, यद्यपि उनको एक दूसरे के नेशनल एंथम के मीनिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history। इनॉग्रेशन के दिन नेल्सन मंडेला जो थे उनके सेंस में, दिमाग में पास्ट टाइम का जो भी प्रॉब्लम था वह बार बार दिमाग में आ रहा था। जैसे किस प्रकार से उन्होंने अपार्थाइड पे विक्ट्री गेन की, ये सब उनके दिमाग में आ रहे थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में यानी 1910 के आसपास, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, कुछ वर्ष के बाद यानी a few years after एक बीटर वॉर हुआ था, बहुत ही खतरनाक वॉर हुआ था जिसका नाम एंग्लो बोर वॉर था। यह इंग्लिश और अफ्रीकन के बीच हुआ था और यह वॉर ठीक नेल्सन मंडेला के बर्थ के कुछ पहले हुआ था। इस वार में द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। इसमें जितने भी वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म किया, किसके अगेंस्ट? डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट ऑन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्म किया, यह अब तक की सबसे हार्शेस्ट और मोस्ट ह्यूमन स्ट्रक्चर्स थी जिसे लोग आज भी जानते हैं। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में यानी लगभग 1990s के समय में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और लगभग नेल्सन मंडेला के 8th डिकेड यानी 80 साल पूरे होने पे, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। इस सिस्टम को नेल्सन मंडेला ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। और एक ऐसा सिस्टम ला दिया जिसमें अपार्थाइड खत्म कर दिया गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गए, एंड ऑल द पीपल्स हैड गेट फ्रीडम एंड दे गेट राइट रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। चाहे वे किसी भी कलर के हो या किसी भी स्किन के हो, सभी को उनका राइट मिला, अधिकार मिला या स्वतंत्रता मिली। दैट डे एंड कम अबाउट थ्रू द अनमिंगेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। नाउ नेल्सन मंडेला सोच रहे हैं कि उन दिनों के बारे में सोच रहे हैं जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड सिस्टम था, एंड थाउजेंड ऑफ पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और हजारों लोग ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड। ऐसे लोगों के कष्टों को और साहस को काउंट ही नहीं किया जा सकता कि कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया। ही फेल्ट दैट डे एज ही हैड ऑन सो मेनी अदर डेज। वे उन दिनों को वैसे ही फील कर रहे हैं जैसे कि आज फील कर रहे हैं। That he was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। वे कह रहे हैं कि जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट थे, पैट्रियट मीन्स वंस हु लव्स वंस कंट्री, वे उन्हीं की तरह थे, यानी उन्हीं की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह अपने कंट्री से क्या करते थे? लव करते थे। That long and noble line ended and now began again with me। He was pined that he was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifice had wrought। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज जब अपार्थाइड सिस्टम खत्म हो गया है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है, और जितने भी उस समय के पीपल थे जिन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, वे इस आज़ादी को देखने के लिए यहाँ पे नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन नेल्सन मंडेला उनको बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहते हैं।
The policy of apartheid created a deep and lasting bonds in my country and my people. अपार्थेड जो सिस्टम था इसने साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीकन लोगों के अंदर एक बहुत ही लास्टिंग बाउंड क्रिएट किया, यानी बहुत अधिक कष्ट पैदा किए. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. और इस हर्ट से रिकवर होने के लिए, इस कष्ट से रिकवर होने में साउथ अफ्रीका के लोगों को कई वर्ष लग जाएंगे. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sesslers, the Chief Luthilus, the Yusuf Dados, the Bram Fissers, the Robert Supos are our time men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो हम इन महान पर्सनालिटीज को देखते हैं जिन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया. दे वर मच एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन. वे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाले थे, विजडम वाले थे, उनके अंदर बुद्धिमानी थी. वे अपने कंट्री के प्रति बहुत ही सिंसियर थे, बहुत ज़्यादा लव करते थे. दैट दे आर लाइक मेनी नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जैसे व्यक्ति हम दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of characters. इस लाइन का मीनिंग है कि जो भी फेमस पर्सनालिटीज थे उनके अंदर ये क्वालिटीज लाइक करेज, विजडम और जनरसिटी आई कहाँ से थे? क्योंकि इनको अपार्थेड सिस्टम के समय यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन समय बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया था. तब जाकर के उनके अंदर एक करेज, विजडम और जनरसिटी जैसी क्वालिटीज या कैरेक्टर प्रोड्यूस हुई. His country is rich in the minerals and gems that lies beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वह रिच इन मिनरल्स यानी मिनरल्स से भरा हुआ है. साउथ अफ्रीका में रॉ डायमंड्स निकाले जाते हैं. एंड जेम्स लाइज बीनीथ द सॉइल, और इसकी धरती के अंदर ढेर सारे जेम्स यानी हीरे जवाहरात, सोना, गोल्ड, ठीक है, रॉ गोल्ड जो है वह भरा पड़ा है. लेकिन नेल्सन मंडेला का कहना था कि इन गोल्ड से भी ज्यादा नेसेसरी जो है और फाइनर और प्योरर हैं वे वहां के लोग हैं. यानी द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका इज मोर फाइनर, मोर ट्रूअर, इट मीन्स प्योरर देन द डायमंड्स. इट इज फ्रॉम दीज कॉमोडिटीज इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जितने भी उनके कॉमोडिटीज थे जिन्होंने इस अपार्थेड सिस्टम को अबॉलिश करने में उनका साथ दिया था, उनसे उन्होंने सीखा कि व्हाट इज करेज. आखिर करेज मीन्स साहस क्या है. टाइम एंड अगेन ही हैड सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. उन्होंने देखा कि जितने भी मेन एंड वुमेन है उस समय उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया केवल उन आइडियाज के लिए, उन रीजन को गेन करने के लिए, पाने के लिए. He had seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defeats the imagination. उन्होंने देखा कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि टॉर्चर किए गए लेकिन शोइंग स्ट्रेंथ, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को ब्रेक करने नहीं दिया, अपनी ताकत को टूटने नहीं दिया, अपनी शक्ति को खत्म नहीं होने दिया. और इस अपार्थेड सिस्टम में अपार्थेड को एबॉलिश करने के लिए उन्होंने ब्रेवली, करेजियसली फॉट किया, बहुत ही साहस से लड़ा. ही लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. उन्होंने ये देखा कि या ये सीखा दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज, साहस का मतलब डर नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विक्ट्री गेन करना है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर दैट फियर. यानी धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप किसी से डरते नहीं हैं,
बल्कि ये है कि आपने डर पर विजय पा ली है। और जब आप डर पे जीत पा लेते हो तो कह सकते हैं कि आप ब्रेव हो गए हो, बहादुर हो गए हो। तो जितने यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज को हमने देखा, यानी जितने महान व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा, उन सभी ने डर पे विक्ट्री पा ली है। आप सोच रहे होंगे इस लेसन को हम क्यों इतना स्टडी कर रहे हैं। तो ये लेसन बताता है कि किस प्रकार से हर इंसान अपने डर के ऊपर विक्ट्री गेन कर सकता है और अंत में सक्सेसफुल हो सकता है अगर वह बहादुरी से क्या करे, फाइट करे। No one is born hating another person because of the color of his skin. Here नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि हेट करता हो another person से because of his skin, क्योंकि उसका कलर और स्किन अलग है, बैकग्राउंड अलग है, या वह किसी another रिलीजन का है। बल्कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को हेट करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि उन्हें हेट करना सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव ऑल्सो, तो उन्हें लव करना भी सिखाया जा सकता है, दूसरों से प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि लव जो है वह ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आती है, यानी लव जो है नेचुरली कम्स इन द ह्यूमन हार्ट रेदर देन द हेट्स। Even in the grimiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. यानी जब वे प्रिजन में थे अपने फ्रेंड के साथ, तो यह उनके लाइफ का सबसे ग्रीमिएस्ट टाइम था, टफ टाइम था, बहुत ही कष्ट भरा समय था। He were pushed to our limits, he would see a glimmer of humanity. Pushed to our limits means pushed to a last point in our ability to bear pain. यानी जब आपको इतना कष्ट दे कि उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाए, तो उससे हम कह सकते हैं कि pushed to our limits। तो उनको जेल में इतनी यातनाएं दी जाती थी कि उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती थी। He would see a glimmer of humanity in of the guards। तो उस समय अगर कोई भी एक गार्ड उनके ऊपर दया दिखा दे तो उनको क्या मिलता था, हिम्मत मिलता था कुछ सेकंड के लिए। बट इट वॉज एनफ टू रेस्क्यू मी, कीप मी ऑन गोइंग। उनको कम से कम ये लगता था कम से कम अभी भी इंसानियत जिंदा है। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। नेल्सन मंडेला का कहना है कि मनुष्य की जो अच्छाइयां हैं, इट इज जस्ट लाइक अ फ्लेम, यह फ्लेम के समान है। दैट कैन बी हिडन, इसे हिडन तो किया जा सकता है, छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन यह फ्लेम कभी बुझती नहीं है।